डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज होता है, जिसको अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट होगा, राइट? हमने सब किया है बेटा। यस यस डिस्पर्स फेज को मैं डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोलता हूँ और Yes. डिस्पर्स मीडियम को मैं कंटिन्यूअस फेज भी Continuous बोलता हूँ, phase. ठीक है। On the basis of the physical state of the dispersed phase and the dispersion medium, I can classify my colloids into 8 different categories: base, solid in solid, liquid in liquid, liquid in gas, solid in gas. इस तरीके से हमने देखे थे, right? Second Yes. classification was based of the interaction between the dispersion phase and the dispersion medium and the dispersed phase, lyophilic and lyophobic colloids. Phobic. Acha. The third type was on the size of the colloidal particles. It can be a micromolecular colloid. It can be a Macromolecular associative. Multimolecular. associated colloid. ठीक है? ठीक है? Yes, yes. Yes. Acha. Fine. Then after that we had seen how to prepare colloid. Chemical method देखा था हमने preparation का. Yes. Yes. Then we had seen Briggs method. Briggs method. Briggs arc method. Briggs arc method for सर एक preparation. बार बताना और revision. आए? एक बार बताओ Briggs method. ब्रेडिक्स मेथड में क्या था बेटा? जो मेटल का मेरे को कोलॉइड बनाने का है, वो मेटल का रॉड लेगा, मैं उसको सॉल्यूशन के अंदर डिप करेगा, सॉल्यूशन के अंदर डिप करेगा. These metal rods will be connected to a very high power source. This is kept in a ice bucket. ठीक है? So what Yes. happens? Current is going to pass. There is going to be a because of this arc, the metal will Melt. start evaporating. So once it starts evaporating, because of the ice present, it is going to condense and it's going to mix in that particular क्या बोलते हैं solution which is there. Solution. Yes. कैसे हम लोग अपना Briggs arc method यूज करते हैं. बेटा हमने पेप्टाइजेशन डिस्कस किया था. No. Oh. So peptidation was one method. I guess I didn't क्या बोलते हैं teach peptidation. So let me teach peptidation and then I will go move ahead with the chapter. ठीक है? Now peptidation is a very special or rather a very common method of making colloids. What is peptidation? Very easy method. वो केमिकल रिएक्शन देखे थे जहाँ पे ये क्या बोलते हैं हम लोग को प्रेसिपिटेट मिल रहा था. Yes. Yes. ठीक है? प्रेसिपिटेट लीजिए मैंने, कोई बात नहीं बेटा, एक ही बात है. प्रेसिपिटेट अभी बरोबर है. प्रेसिपिटेट. Yes. Yes. Precipitate is nothing but a compound which is displaced in a particular reaction, generally in a solution. ठीक है? तो precipitate जब भी दिखता है हमको वो solution की तरह दिखता है कि भाई white कलर का, brown कलर का, कैसा भी कलर का precipitate निकला है, right? ये सबको Yes. पता है ना precipitate? Yes. 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 देखो. Yes and yes. Yeah, please write. ये देखो, I have a test tube. In this test tube, हेलो सर, आपका माइक सर म्यूट हो गए आप. म्यूटेड है. You are unmute, sir. I was on mute. Yes, Yes. you were on mute. नहीं, I'm sorry. I was getting Yes, a sir. call. Yes, sir. It is a working day ना, तो मेरे को calls आते रहेंगे. No. What no? बोर्ड विजिबल है ना बेटा क्लियरली? ये देखो Yes. सॉल्यूशन है और ये रेड वाला जो है ना ये प्रेसिपिटेट है. प्रेसिपिटेट है ये रेड, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर मैंने डाला इलेक्ट्रोलाइट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट इज आल्सो कॉल्ड एज पेप्टाइजिंग एजेंट. पेप्टाइजिंग एजेंट.
एग्जाम्पल के साथ करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा बेटा। आप रुकें, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। ओके, ये वाला इजी रहेगा। Remember this reaction जिसमें ferric hydroxide was the precipitate? Yes. या आप लोगों Yes. ने था? 3H2O 3HCl. ठीक है? Yes. Balancing is okay, that is okay. अभी इस पे ध्यान दो। When you are reacting ferric chloride, or rather, when you are hydrolyzing ferric chloride, what you get is ferric hydroxide and hydrochloric acid. ये बेटा मैंने जो भी नाम लिए ना, मैंने कंपाउंड्स के नाम देखिए, ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, इन कंपाउंड्स के नाम है फेरिक क्लोराइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक Yes. एसिड डरने का नहीं, HCl, फेरिक हाइड्रोक्साइड को डरने का नहीं, ये ठीक है। अच्छा, व्हाट डज दिस डाउनवर्ड एरो इंडिकेट? दिस डाउनवर्ड Precipitate. 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 डाउनवर्ड एरो, इसका मतलब क्या है बेटा? सब लोग ध्यान देना। हाँ, ये देखो, मैंने ना एक टेस्ट ट्यूब लिया, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन लिया, फेरिक क्लोराइड एंड वाटर को ऐसा मिक्स किया। फेरिक क्लोराइड इज अ सॉल्ट, ठीक है, FeCl3, जैसे अपना NaCl होता है, ऐसे FeCl भी एक सॉल्ट है, FeCl3, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर सॉल्ट को खाने में ही डालना होता है, ठीक है ना बेटा, और सॉल्ट्स के दूसरे भी यूजेस होते हैं। अच्छा, तो अभी ये FeCl3 को मैंने टेस्ट ट्यूब में लिया और उसके अंदर वाटर मिक्स किया, उसको ऐसे शेक किया, ठीक है। तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ। जब रिएक्शन हुआ तो क्या फाइनल रिजल्ट मेरे को मिला? फेरिक हाइड्रोक्साइड, दिस हाइड्रोक्साइड इट गॉट प्रेसिपिटेटेड, इसका सॉलिड प्रेसिपिटेट मेरे को मिला और HCl सॉल्यूशन में बन गया। सबको ये क्लियर हुआ रिएक्शन? Yes. Yes. अच्छा, FeCl3 got hydrolyzed to give me ferric hydroxide and HCl. Over here, ferric hydroxide got precipitated. अच्छा, can I call this solution as a colloid? Yes. Sir, voice तो break हो रहा है. Yes, sir. मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा? Sir, अभी नहीं हो रहा है. अच्छा, तो 2 सेकंड के लिए होगा तो इतना क्यों परेशान हो जाते हो? माय क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन सुना तुमने शुभम? Yes. क्या था मेरा क्वेश्चन? Colloid है कि नहीं? Colloid है क्या Is a नहीं? colloid or not? मेरा क्वेश्चन ये है, ये रिएक्शन हुई, प्रेसिपिटेट मिला HCl में, तो यू जो सोल्यूशन है यहाँ पे, यू सोल्यूशन कोलॉइड है कि ना है? Yes है, ये है. No. 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 जो No. यस बोल रहा है क्यों यस है, जो नो बोल रहा है क्यों नो है? Sir, वो dispersed क्योंकि- phase Sir, colloid dispersed phase और पूरा scatter रहता है ना. टाइम Sir, dispersed phase बेटा, colloid बेटा तुम dispersed थोड़ा phase माइक माइक को मुंह से दूर कर. dispersed phase dispersion medium में scatter रहता है पूरा ना. क्या बोल रहे हो बेटा? dispersed phase dispersion medium में scatter रहता है पूरा, मतलब colloidal solution में. तेजस. तेजस वेरी गुड बेटा, राइट। अच्छा, तो ये नो बोल रहा है, अभी यस कौन बोल रहा था? कोई तो बोल रहा था ना यस, अभी कोई नहीं बोलेगा। सो एक्चुअली द आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ कोलॉइड। क्यों? बिकॉज कोलॉइड में डिस्पर्जन मीडियम में स्कैटर रहता है और ये स्कैटर्ड नहीं है, तो मुझे इसको कोलॉइड बनाने का है। बाय विच मेथड? बाय पेप्टाइजेशन मेथड. पेप्टाइजेशन मेथड में क्या होगा, मेरे पास एक सोल्यूशन होगा, उसमें प्रेसिपिटेट होगा। अब मैं उसको कोलॉइड में कन्वर्ट कैसे करूंगा? मैं उसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूंगा। इलेक्ट्रोलाइट उसमें था नहीं, मैं उसमें अलग से डाल रहा हूं। व्हाट इज अ इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इन विच आयंस आर प्रेजेंट। if you क्या बोलते हैं, put electrodes and connect it with current will start flowing through this solution. Okay, Yes. electrolyte क्या? NaCl mixed with water, simple, it's a electrolyte. अरे Yes. Yes. समझ रहे बेटा? Yes. Yes. Electrolyte solution which contains ions which can conduct electricity, right? Yes.
salt solution is a good electrolyte. अच्छा, अभी देखना बेटा, मैं एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट में ऐड नहीं करेगा. आई हैव टू बी केयरफुल. कौन सा मेरा क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट है? FeOH3. FeOH3 ठीक है, इसमें FeOH3 है, तो मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा FeCl3 और ऐड करूंगा. FeCl3 जो सॉल्ट मैंने स्टार्टिंग में लिया था वही मैं थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ. या फिर कोई भी एक ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर आयरन का आयन होगा. सिंपल एज दैट. FeCl3 का इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा आयन होगा बेटा? Fe प्लस एंड Cl माइनस. Cl minus, yes. राइट? Yes. Yes. प्लस और Cl माइनस आयन रहेगा इसके अंदर. Yes. Yes. राइट. अच्छा, अब बिफोर गोइंग अहेड टू दिस आई विल गिव यू अ कॉन्सेप्ट. एक कॉन्सेप्ट दूंगा, उसको एनालाइज करना और इस सिचुएशन के साथ जोड़ना उसको. ठीक है बेटा? अच्छा, when pre-COVID era, when there was no COVID and people used to celebrate their things and people used to go to parties. ठीक है? तभी क्या होता था? When we are going to a function, there are all types of people, right? There are क्या बोलते हैं, चुगली करने वाले आंटीज, then there are ज्ञान देने वाले अंकल्स, and then there are annoying children who are running here and Umpak there. Chacha. Right? हाँ, yes. What चाचा? So क्या बोलते हैं, अनोइंग बच्चे रहते हैं जो यहाँ वहाँ भागते रहते हैं. देन कुछ लोग होते हैं जो एक कोने में अपनी दुनिया में गायब रहते हैं. कुछ लोग Introverts. अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं. ठीक है? तो आप अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, तो आपकी मॉम कहाँ जाएगी? सब लेडीज में जहाँ पे उनको अपना इंटरेस्ट ऑफ टॉक मिलेगा. आपके डैड कहाँ पे जाएंगे? इन ऑल मेन वेयर they will talking on a same topic. Where will you go? Obviously you will go and sit with your age group people because your talks and their talks are going to match, right? तुम अगर इंस्टाग्राम के बारे में बात करोगे, तुम अगर पबजी के बारे में बात करोगे, तो तुम्हारा कॉमन होगा. तुम आंटी से जाके तो बोल नहीं सकते ना इंस्टाग्राम पे हो क्या, she'll slap you बेटा, right? So the point over here is similar age groups or similar people who have similar properties in this context will try to bond with each other. When I say bond, do not chemical bond का इसको जोड़ना मत. ठीक है? अब यहाँ ध्यान देखना बेटा, मेरे पास जो प्रेसिपिटेट है वो क्या था? FeOH3. OH thrice. इसके अंदर से दो आयन टूटा. कौन सा आयन टूटा बेटा? Fe प्लस और Cl माइनस. Cl minus. अभी क्या होगा ना, प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होगा. प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होगा. आई एम वेरी क्लियर विद व्हाट इज एब्जॉर्प्शन. अच्छा खासा लेक्चर दिया मैंने एब्जॉर्प्शन के ऊपर, तो अभी कोई ऐसा मत बोल रहा कि मुझे एब्जॉर्प्शन क्या है वो पता नहीं. सबको पता है एब्जॉर्प्शन क्या है, राइट? Yes. Yes. सर उसके पहले आपने कौन सा Yes. वर्ड बोले? हाँ वो बता रहा हूँ. प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन. रिमेंबर केमिकल एब्जॉर्प्शन में हमने Yes, देखा yes, था. yes. 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 अच्छा, ये जो FeOH3 है ना, ये जो FeOH3 का प्रेसिपिटेट है, ये वो इलेक्ट्रोलाइट का Fe प्लस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके ले लेगा. क्यों बेटा? इसके पास भी Fe है, ये भी Fe प्लस है. सेम इंटरेस्ट इसके ऊपर ये करके ले लेगा, एब्जॉर्ब करके. वो कॉन्सेप्ट मैंने इसके लिए बताया था. तो अगर मेरे को बताओ, अगर मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है और मैं उसके अंदर NaCl डालूं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर कौन सा आयन ये होगा? Na plus. Na plus. परफेक्ट. अच्छा, अब मेरे पास KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट है और मैं उसके अंदर NaCl इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ. उसके ऊपर कौन सा आयन? Cl. 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 Cl minus. वेरी गुड. सो द कॉन्सेप्ट इज, जो मेरा प्रेसिपिटेट का कॉमन आयन है वो उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है. तो जितने भी FeOH3 के मेरे को छोटे पार्टिकल्स, ग्रुप्स या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उन सब के ऊपर Fe प्लस आयन एब्जॉर्ब हो जाएगा. ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको शेक कर रहा हूँ. तो क्या हो रहा है, ये जो प्रेसिपिटेट था वो पूरे में मिक्स होगा बेटा. Yes. ऐसा तो हिलाएगा तो वो सब मिलेगा ना बेटा, घूमेगा ना उसके अंदर. हाँ. अच्छा, अब जब ये घूमेगा ना, इसको बताते हैं क्या होगा. I'm a rider, provider. जब हम लोग उसको शेक करके मिक्स करेंगे तब मुझे ऐसा मिलेगा ये सॉल्यूशन.
आ जाओ, ये देखो, मैं पहले मेरे पास सिर्फ प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन था, मैंने उसको मिक्स किया इलेक्ट्रोलाइट डाल के। इलेक्ट्रोलाइट को मैं और क्या बोलूंगा, पेप्टाइजिंग एजेंट। तो उसको मिक्स किया, घुमाया, तो मेरे को क्या मिल गया, दिस इज माय कोलॉइड। कोलॉइड। ये कोलॉइड में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा, सर अब तो नॉर्मली मिक्स करूंगा तो ये नीचे नहीं बैठेगा, ये उसके साथ मिक्स रहेगा। कैन समवन टेल मी व्हाई? हेलो सर, सर वो पेप्टाइजिंग एजेंट डालने के बाद ही वो कोलॉइड बनेगा? यस, उसके बिना नहीं बनेगा, उसके बिना नहीं बनेगा। दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको ऐसे घुमाया तो ये कोलॉइड बन गया, ये थोड़ी देर बाद फिर से सेटल डाउन नहीं करेगा क्या नीचे? Yes, No. करेगा सर। करेगा करेगा। करेगा। ओके, आई थिंक शैरन वाज सेइंग नो। व्हाई आर यू सेइंग नो शैरन? क्योंकि FeOH के ऊपर Fe एब्जॉर्ब हो गया। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। तुम सबने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, शैरन ने इस बात पे ध्यान दिया। FeOH3 के पार्टिकल्स के ऊपर Fe प्लस एड्सॉर्ब हुआ है, और सिर्फ एक पार्टिकल के ऊपर नहीं, सारे पार्टिकल्स के ऊपर Fe प्लस आयन एड्सॉर्ब हुआ है। जब मैं उसको मिक्स करूंगा सारे पार्टिकल्स उधर उधर चले जाएंगे विद Fe प्लस एड्सॉर्ब्ड ऑन इट्स सरफेस। अब जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे, बिकॉज ऑफ द सिमिलर चार्ज Fe प्लस क्या होगा बेटा? रिपल। ये रिपल्शन। राइट। तो जब भी वो नीचे की तरफ बैठेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे, रिपल्शन होगा, और कंटिन्यूअसली उसके अंदर घूमते रहेंगे और उसके अंदर मिक्स रहेंगे। सिंपल। तो मेरा कोलॉइड मेरे को मिल गया बिकॉज ऑफ एडिंग ऑफ द पेप्टाइजिंग एजेंट और द इलेक्ट्रोलाइट। यस। पर मतलब वापस से सेटल नहीं होंगे ना नीचे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन सबके ऊपर चार्ज आ गया है। Such a colloid is called as a charged colloid. And in general, when you look at the colloids, ना, all colloids are charged. Colloids के ऊपर charge present होता है। Colloid, when I say colloids ना बेटा, whenever I say all colloids are charged, it means colloidal particles. When I say colloidal particles, I am referring to dispersed phase particles. All these dispersed phase particles, they have charge on them because of this same reason. अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं भी कर रहा हूँ, नॉट इन दिस पेप्टाइजिंग वाला, मैं नॉर्मल कोलॉइड्स की बात कर रहा हूँ, इम्प्योरिटीज रहता है उसके अंदर, और कोई ना कोई सिमिलर इम्प्योरिटी वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके ले लेता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, और सब पार्टिकल सेम इम्प्योरिटी को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे। सेम को एब्जॉर्ब करेंगे तो सबके ऊपर सेम चार्ज रहेगा। अगर सबने आयन को एब्जॉर्ब किया तो सब पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे, अगर सबने नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब किया तो सब नेगेटिवली चार्ज रहेंगे। तो इस तरीके से दो टाइप के कोलॉइड्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड। यस Yes. यस सर, वो इलेक्ट्रोलाइट स्टेबल करते हैं ना? क्या? हाँ, यस, ये इलेक्ट्रोलाइट मेरे कोलॉइड को स्टेबल करेगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और इसी से रिलेटेड आगे अपने को हार्डी शूज रूल एक पढ़ना है। अगर आपको ये सब समझा है तो आपको वो रूल भी आराम से समझ जाएगा। ठीक है, सो ये समझा बेटा, पेप्टाइजिंग एजेंट का, प्रेसिपिटेट, Yes. इलेक्ट्रोलाइट, शेकिंग, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, कोलॉइड फॉर्मेशन, स्टेप बाय स्टेप हमने किया। Yes. ठीक है, लिख लो, Yes. बना लो ये। मैं चाय पी लेता हूँ। सॉरी। वो भी सर देखेंगे। Yes, no, maybe. Am I connected? Yes. हो गया लिख के? No. मैं गिर गया। लॉल। हट। Done? I'm right.
सो नाउ ये कोलॉइड्स को हमने पढ़ा है अच्छे से अभी, ठीक है। नाउ वी ऑल नो व्हाट इज अ कोलॉइड। सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। कौन फ्रीज हुआ? नहीं 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 हुआ। नो सर। अरे मैं साइड में बैठा था ताकि तुम बोर्ड देख सको, ठीक है। कैन वी गो हेड नाउ? नो व्हाई नो? सर आई एम राइटिंग। ओके। डन सर। सबको समझा बेटा ये? यस। यस। कितने बच्चे आए लेक्चर में? चार, पाँच? 46। Oh my God. 46 people and I only heard voice of 4 or 5 people. Good. नॉर्मल लेक्चर तो तुम लोगों को शांत करते करते थक जाता। ऑनलाइन लेक्चर तो मैं तुम लोगों को बोलता हूँ बात करो बात करो। Properties of colloids. Now, colloids are solutions only. They are type of solution. Remember मैंने आपको बोला 3 टाइप के solution होते हैं, true solution, suspension and colloids. ठीक है? तो Yes. अब colloids हैं, इन colloids की ऐसी क्या खास बात है? Why are these colloids so special? What special properties do they have? तो वो जो special properties है, हम उस पे ध्यान दें। एक तो इनका particle size सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में होता है। बीच में। नेकेड आई से हम पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ही लगता है पार्टिकल्स देखने के लिए। दैट इज वन थिंग। ओके, देन what are the other special properties which are shown only by colloids and are not shown by suspensions or not shown by the true solution? तो अभी देखते हैं क्या कौन सी प्रॉपर्टीज की हम लोग इसमें बात करते हैं। आप लोग ने टेंडल इफेक्ट करके ये वर्ड सुना है कभी? यस। क्या सर? कौन सा? कब सुना है? सर आपने ही बताया। मैंने कब बताया? सर आपने बोले थे कि सीबीएसई में 9th में है। हाँ, तो तुम लोग ने किसी ने स्कूल में पढ़ा है टेंडल इफेक्ट? नो। No. सर नो। Okay. So we are going to look at Tyndall effect. तो प्रॉपर्टी है। क्या बेटा? प्रॉपर्टी है क्या? Yes, it's a property. It's an effect which it is a phenomenon. It is a phenomenon which is shown only by colloids. अब ये क्या है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है? This is a source of light. Light को मैं light लिख रहा हूँ। Source of light, monochromatic light. इधर अपन ने ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन रखा हुआ है, उसके आगे अपन ने कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा हुआ बेटा। कोलॉइडल सॉल्यूशन एक है अपना ट्रू सॉल्यूशन और एक है अपना कोलॉइडल सॉल्यूशन। अच्छा, नॉर्मली इसको देख करके आप बता सकते हो कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है और कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन है? यस। कैसे? कोलॉइड समझ में आता है, ट्रू सॉल्यूशन में समझ में नहीं आता है। वो कोई कोलॉइड समझ में आता है,
बाकी ऐसे बहुत सारे कोलॉइड होते हैं जिनमें पार्टिकल दिखता नहीं है, कुछ ऐसा homogeneous दिखता नहीं mixture है। है, तो समझ में नहीं आता है कि वो कोलॉइड है कि क्या है। अभी देखो ये ट्रू सोल्यूशन है, ये कोलॉइडल सोल्यूशन है। अगर मैंने नीचे नहीं लिखा होता तो आप बता पाते कौन सा ट्रू सोल्यूशन है कौन सा कोलॉइडल सोल्यूशन है? नो। No. ठीक है, तो अब कैसे पता करेंगे? How will you find out whether the given sample is a true solution or सर a वॉइस ब्रेक colloid? हो रहा ठीक है, क्या बोल रहे हो बेटा? है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है, अभी भी हो रहा है? यस क्यों हो रहा है ब्रेक? सर, अभी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा, अभी देखो, how will I find out whether my solution is a true solution or it is a colloidal solution? I will pass a monochromatic beam of light through this solution. ऐसा ये सोर्स ऑफ लाइट है, इस पे लाइट फोकस करेगा मैं, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन पे जब मैं लाइट डालेगा ना, लाइट सिंपली उसके थ्रू पास होगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा मेरे को। एक कांच का ग्लास है रे, ठीक है, स्टील का ग्लास होता तो रुक जाता उधर ही, कांच का हाँ। ग्लास है, लाइट पास होगा इधर होगा। अच्छा, कोलॉइडल में से भी लाइट पास होगा और ट्रू सॉल्यूशन में से भी लाइट पास होगा। फर्क इतना है, जब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन में से पास होगा तब मुझे लाइट का जो पाथ है वो हाईलाइट हो जाएगा। लाइट जाते हुए पूरा सॉल्यूशन को मतलब मैं देख पाऊंगा कि इस वाले पार्ट में से लाइट जा रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, आई विल ऑल्सो बी एबल टू सी the smaller colloidal particles when light is passing through a colloidal solution. True सर ये solution, एक्सपेरिमेंट डार्क में कर सकते हैं ना? हाँ वेरी गुड बेटा, यस डार्क में ही करना है। लाइट का एक्सपेरिमेंट सब डार्क में करते हैं। ये देखो, जब when I'll pass a beam of light through a true solution, the light will simply pass through the solution. I cannot see the path of light. वो solution के अंदर से लाइट कहाँ से जा रहा है मुझे पता नहीं चलेगा। बट कोलॉइडल सॉल्यूशन में द पाथ ऑफ लाइट इज हाईलाइटेड, अपने को दिखता है कि ग्लो हो गया ये, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, आई कैन सी द पार्टिकल्स, द कोलॉइडल पार्टिकल्स थ्रू दैट सॉल्यूशन। आई कैन सी द कोलॉइडल पार्टिकल्स बाय इन द पाथ वेयर लाइट इज ट्रैवलिंग, सिंपल एज दैट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा ये क्या हो रहा है समझा, सिर्फ क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। क्या हो रहा है समझा? यस समझा समझा। Yes, Yes. समझा। क्या हो रहा है, मैं लाइट को पास कर रहा हूं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में लाइट का पास क्लियरली दिख रहा है, बट ट्रू सॉल्यूशन में लाइट का पास नहीं दिख रहा है। ओके, व्हाई इज दिस हैपनिंग? बेटा ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, Yes. और आपको पता है लाइट का जो वेवलेंथ है वो 10 to the power 10 -10 मीटर या फिर एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में रहता है। एवरीबॉडी Yes. नोज दिस, यस Yes. बहुत छोटा रहता है। अच्छा, पार्टिकल साइज और वेवलेंथ का जो साइज है, वेव भी क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ओनली ना बेटा। यस Yes. लाइट इज वेव पार्टिकल डुअलिटी। यस पता है। Yes. हाँ, ठीक है। तो ये देखो, अभी वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, ओके। अभी ये जो पार्टिकल्स है ट्रू सॉल्यूशन में, इसके अंदर जो सॉल्यूशन सर Sir, म्यूट mic सर is- म्यूट, सर म्यूट हो गए आप। म्यूट हो गए। सर म्यूट। guys, am I audible? यस Yes. I got a call, ठीक है, okay, नो। you know,
Okay, where was I? Yeah, this wavelength of light and the particle size, wavelength of light and the particle size, इसका particle size बहुत छोटा होता है। तो वो जो लाइट आती है ना, मतलब एक ये बता रहा हूँ मैं बेटा तुमको कि क्या बोलते, डेमोन्स्ट्रेशन करके बता रहा हूँ। सपोज दिस इज द पार्टिकल ऑफ क्या बोलते हैं, माय ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के सामने लाइट का जो बीम है वो ऐसा होगा। मैग्नीफाइड वर्जन बता रहा हूं, इतना बड़ा छोटा कुछ होगा नहीं। पार्टिकल साइज बड़ा है और लाइट का बीम, पार्टिकल साइज छोटा है और लाइट का बीम बड़ा है, राइट? यस। अच्छा, अब देखो बेटा, अब इसके सामने दिस इज द पार्टिकल साइज ऑफ माय कोलॉइडल सॉल्यूशन। पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यस ठीक है? ये देखो, ये जो लाइट आ रही है ना, ये पार्टिकल साइज इसको ये नहीं कर पाता, डाइफ्रैक्ट नहीं कर पाता है, उसको डिस्पर्स नहीं कर पाएगा क्योंकि साइज बहुत छोटा है। उसको ऐसे छू के निकल जाएगी, वो बोलते बाजू में निकल और आगे चली जाएगी, वो इतना छोटा साइज होता है। बट आप कोलॉइडल पार्टिकल के पास आओ, ये जो लाइट का बीम आएगी ना, ये इससे टकराएगी। इससे टकराने के बाद ना, इसका साइज बड़ा होने के कारण वो क्या करेगा, वो लाइट को डाइफ्रैक्ट कर देगा, डिस्पर्स कर देगा। समझ रहे हो बेटा? यस, तो समझ रहे। हाँ, ये जो लाइट डाइफ्रैक्ट होगा उसकी वजह से इसका जो पार्ट होता है ना, वो विजिबल हो जाता है। और नॉट ओनली दैट, जहां पे वो डाइफ्रैक्ट होता है वो पॉइंट क्लियरली दिखने लगता है। जहां पे वो डाइफ्रैक्ट हुआ है वो पॉइंट क्या है, दैट इज नथिंग बट द कोलॉइडल पार्टिकल। इसलिए कोलॉइडल पार्टिकल्स विजिबल होने लगते हैं जब ये लाइट उससे टकराता है। लाइट टकराता है कोलॉइडल पार्टिकल से तो उसको डाइफ्रैक्ट कर देता है। डाइफ्रैक्ट कर देता है मतलब उसका पाथ विजिबल हो जाता है। डाइफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्शन या फिजिक्स में पढ़ोगे डिटेल में। यस, पढ़ा है। यस Very good, beta. So did you got the difference why I cannot Yes. see the light path over here and why I can see it over here? Because other particles they disperse the light. ये उसको disperse कर देते हैं। उसको disperse कर देते हैं तो क्या होता है, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। यहाँ पे the particle size is so small that they are not able to disperse the particles of the wave of the light. Simple as that. एक कळालं का सगळ्यांना? हो। Yes. यस Now consider this. किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछो। What is this, बेटा? यूएफओ। This is not a UFO. This is a car. This is a human कार This is car. ये कार का हेडलाइट है। रात को कभी कार चलते हुए देखी है आपने? यस सर, Yes. लाइट में वो दिखते हैं Yes. छोटे छोटे लाइट में वो पार्टिकल्स। पार्टिकल्स दिखता है। वेरी गुड। उसका लाइट अगर जो गाड़ी का ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, हेडलाइट। हेडलाइट। ना तो इस तरीके से आपको उसमें से लाइट जाती हुई दिखती है। यस, Yes. पार्टिकल्स ओवर हियर। यस, दिखता है। उनमें सुबह अगर कोई छोटी सी खिड़की होती है और एकदम अर्ली मॉर्निंग यू ओपन द विंडो, यू कैन सी लाइट एंटरिंग योर हाउस विद Yes. डस्ट Yes. पार्टिकल्स। 10 पार्टिकल्स। यस, Yes. Yes. यस सर, मूवी थिएटर्स में प्रोजेक्टर के पास Yes. यस, यस, उधर भी उधर पे भी। Yes. अच्छा, that exactly is your Tyndall effect. That exactly is your Tyndall effect. अब बेटा ये गाड़ी में, वो घर में, वो मूवी थिएटर में वो Tyndall effect क्यों दिख रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स लाइट पे एब्जॉर्ब हो जाता है। this air around me, it is an example of a colloid. What type of a colloid? Solid particles dispersed in gas. Dust particles are dispersed in the gas, यस, right? हमने पढ़ा था first type of classification में. यस, यस सर, Particles in gas is a type of a colloid, right? Solid in gas. Yes. यस, Yes. यस। यस इसीलिए हमको जब वो लाइट आती है तब हमको Tyndall effect दिखता है। This is what is Tyndall effect. सर वो रिफ्रैक्ट कैसे होता है लाइट? क्या बोल रहे हो बेटा? रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्ट नहीं, जब refract- कोलॉइडल सॉल्यूशन से ये होगा। ठीक है बेटा, डिस्पर्स होगा Yes. लाइट। Have you understood what is Tyndall effect, guys? यस यस यस, यस यस, Any doubt, please ask me. नो डाउट। सर वो क्या बोलते, एटमॉस्फेयर में डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है ना? एटमॉस्फेयर में
डिस्पर्जन मीडियम गैस है, डिस्पर्स फेज सॉलिड है। डिस्पर्स फेज क्या है वहां पे? डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल्स। डिस्पर्जन मीडियम क्या है? गैस, द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है बेटा? Yes. आए, ठीक है, ये लिख लिया, ये बना लिया, नो नो। बनाए। Important property, huh, beta? Tyndall effect is an important property. The phenomenon of scattering of light by colloidal particles and making path of light visible through the dispersion medium is referred to as Tyndall effect. सर रिपीट करो। अरे पहला ये लिखो, उसके बाद रिपीट करेंगे। डन सर वो ये सब। The phenomenon of नहीं, the phenomenon of scattering of light by colloidal particles and making path of light visible. Yes, sir. How? And making के बाद And making path of light, light का रास्ता, path of light visible through the dispersion medium, अभी ये किसका फैक्ट का एलिमेंट थी? डिफरेंस टू गणपत मेहता। समझा नहीं सर क्या? नहीं, मैं मेरा मेल पढ़ रहा हूँ। Yes. True dispersion medium is called as Tyndall effect. Is referred as Tyndall effect. ठीक है बेटा? ये डायग्राम ड्रॉ करिए आपने। ये देखो, लाइट के थ्रू, सॉल्यूशन के थ्रू जब कोलॉइडल ये जाएगा, इतना वाला पार्ट ग्लो होने लगेगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? टिंडल कोन। टिंडल नहीं बेटा, टिंडल कोन। दिस विल बी कॉल्ड एज टिंडल कोन। अच्छा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस टिंडल इफेक्ट? कैन समवन टेल मी? आपके हिसाब से टिंडल इफेक्ट क्या बेनिफिट होगा? वो आइडेंटिफाई करो। Very good. The first benefit of Tyndall effect is going to be, it is helpful in identifying a true solution and a colloidal solution. Second, what is going to be the second thing? सर वो लाइट बंद कर दो, शाइन कर रहा है बोर्ड। बहुत शाइन कर रहा है क्या? मेरे को लगा तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, इसलिए लाइट चालू किया था मैंने। सर दिख रहा है। अरे बरोबर तो दिख रहा है। सर नहीं, जब भी आप खड़े होते हो तो आप पे फोकस हो जाता है, फिर बोर्ड पूरा वाइट हो जाता है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं सामने खड़ा ना हूँ? हाँ अभी सही है सर। अच्छा ठीक है। हाँ, तो एक इसका बेनिफिट है, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन क्या बोलते हैं, अ ट्रू सोल्यूशन एंड अ कोलॉइडल सोल्यूशन। द सेकेंड बेनिफिट इज, आप देख सकते हो जब ये टिंडल इफेक्ट होता है तब पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं। तो ये देख करके मुझे समझ में आता है कि पार्टिकल का साइज कितना है। तो पार्टिकल साइज भी मैं जान सकता हूँ बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट, राइट? यस सर वो पार्टिकल सॉलिड है या गैस है वो सब समझ में। हाँ जी बेटा, गैस तो दिखेगा नहीं, तो सॉलिड पार्टिकल्स ही दिखेगा अपने को, है ना? यस ठीक है, डन? यस डन। Yes. कैन आई इरेज दिस? Yes. ओके। So first property is Tyndall effect. Second property is colors of colloids. Generally ना, colloidal solutions
कलर्ड होते हैं, ठीक है। जनरली अभी देखा था स्टार्च वाला वाटर कैसे व्हाइटिश रहता है, देन कुछ येलो होते हैं, कुछ ब्लू होते हैं, देन क्या बोलते हैं आपके सेंट वगैरह में भी देखो अलग अलग कलर रहता है। Yes. And the colored glasses, they are colored, and there are so many examples of colored. Milk is white, is Sanitizer. and so on. ठीक है, jelly is red. So सैनिटाइजर क्या बेटा क्या बोल रहे हो? सैनिटाइजर सैनिटाइजर बोल रहा, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर भी ब्लू कलर का रहता है, हाँ मेरे पास भी ब्लू कलर का सैनिटाइजर। तो इन सब चीजों को कलर रहता है। नाउ व्हाई इज दिस कलर बीइंग इम्पोर्टेंट टू अ कोलॉइड? इसका आंसर अभी टिंडल इफेक्ट में से निकलेगा, कोई मुझे बता सकता है तो। कोलॉइडल सॉल्यूशंस में कलर होता है कुछ कुछ, व्हाई, ऑन व्हाट बेसिस? टिंडल इफेक्ट से थोड़ा सा रिलेटेड है। जब लाइट कोलॉइडल पार्टिकल्स पे पड़ता है तो वो क्या करता है बेटा, उसको डिस्पर्स करता है। ठीक है, डिस्पर्स होने के बाद जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा डिस्पर्स होता है वो अपनी आंख में आके गिरता है। Yes. जो वेवलेंथ अपनी आंख पे आके गिरेगा वही कलर मुझे उसका दिखेगा। दिस इज हाउ Yes. कलर इज सीन। Yes. If I am observing this red marker, ये रेड पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर जो लाइट गिर रहा है ना, ये सब क्या बोलते हैं, वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ रेड वाला वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये रेड वाला वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो आकर के मेरी आंख पे गिर रहा है, मतलब it is passing through my eye. So this red wavelength is passing through my eye. That's why I can see this as the red color. Hey, did you understand how do we see colors? Yes. 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 Right. तो मेरा जो कोलॉइडल पार्टिकल है ये रिफ्लेक्ट डिस्पर्स लाइट। और वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। Breaking voice. मेरे को अगर मैसेज या कॉल आता है ना तो मेरा आवाज ब्रेक होता है। रिमेंबर जब मैं लैपटॉप पे लेता हूँ, जब मैं कर्सर मूव करता हूँ मेरा आवाज ब्रेक होता है। वैसे ही जब मैं ऐसे वीडियो से लेता हूँ तो जब कोई एक्सटर्नल मैसेज या कॉल आता है तब मेरा वॉइस ब्रेक होता है। अभी हो रहा नहीं होगा बिकॉज अभी कोई मैसेज नहीं आया है, वो 2 सेकंड के लिए मैसेज आया था इसलिए वॉइस ब्रेक हुआ था। Yes, sir. Yes. 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 So what is happening? This light is being reflected, is being dispersed by the colloidal particles. तो जो वेवलेंथ अपने आंखों पे आता है वही कलर अपने को दिखता है। Now, it depends first on the reflection and the dispersion. Second, it depends on the particle size. अगर मैं आपको रिमेंबर मैंने आपको एक पहले वो एक जब लैपटॉप पे करते हैं एक ग्रुप ऑफ बॉटल्स दिखा था जिसमें गोल्ड का पार्टिकल का अलग अलग कलर दिख रहा था। Yes. Gold sol. Yes, sir. राइट। Yeah. तो अभी ना दिस कलर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है उस हिसाब से वो लाइट को रिफ्लेक्ट या डिस्पर्स करेगा। तो जिस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट और डिस्पर्स करेगा वो कलर मुझे दिखेगा। गोल्ड का सॉल्ट में कहीं कहीं कलरलेस भी होता है, कहीं पर्पल होता है, कहीं वायलेट होता है, कहीं डार्क ऑरेंज होता है, कहीं डार्क रेड होता है। ऐसे ही उसका अलग अलग Silver color भी होता है। सिल्वर वो सिल्वर का होता है बेटा, ठीक है। अपन गोल्ड पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। अभी इट इज अ माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, इट्स अ मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, उस पर डिपेंड करेगा वो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है और कौन सा कलर मुझे दिखेगा। सिंपल। Yes. Yes, yes. Okay, so if anybody asks you about why colors are observed in colloids, what will you write beta? You will write that colloidal particles, they disperse and they reflect wavelength of light. Now depending on which wavelength of light they are reflecting, that color will be observed on that particular colloid. Simple as So that. repeat, sir. नहीं repeat नहीं करेगा। Colloidal particles. Sir, Colloidal particles reflect and disperse. Colloidal particles reflect and disperse wavelengths of light. Reflect and disperse wavelengths of light. Depending on the size of the colloidal particle,
depending on the size of the colloidal particle, and the reflected wavelength, the color of the colloid is decided. The color of the colloid is decided. ठीक है? Yes. लिख लिया गाइस? Yes. 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 अच्छा. अच्छा. Now let us move on to the next property of my colloids. अरे इतना ही था ये? हाँ, इतना ही था. बस और सर प्रॉपर्टी था ना? हाँ, प्रॉपर्टी था ना भाई. प्रॉपर्टी क्या था? कलर दिखाता है. कलर क्यों दिखाता है? बिकॉज वो लाइट डिस्पर्स कर रहा है. फिनिश. उतना ही था. ठीक है? अच्छा. अच्छा, इसका एक एग्जांपल है. सुबह सुबह आपको स्काई देखो कैसा ऑरेंजिश रेड दिखता है, और Yes. येलो येलो दिखता है, पिंक पिंक दिखता है. एंड स्काई ब्लू क्यों दिखता है? इट्स बिकॉज ऑफ द सेम डिस्पर्शन ऑफ लाइट, राइट? Yes. Yes. पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन, वो all those reasons it all have answers beta, right? So that आसमान है नीला क्यों? It's because of the dispersion of light. Why is light being dispersed? Because my gas is a colloid. हाँ हाँ हाँ. Yes. 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 Now let us look at this kinetic property. Let us look at kinetic property. अभी माझ्याकडे कोलॉइड है. वो कोलॉइड में डिस्पर्जन मीडियम है, जो कंटिन्यूस फेज भी बोलता हूं मैं उसको, हाँ. और डिस्पर्स फेज है, जिसको मैं डिसकंटिन्यूस फेज, Discontinuous. जिसको मैं पार्टिकल्स बोलता हूं. अभी when observed under a high क्या बोलते डिग्री माइक्रोस्कोप, एक अच्छे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम इसको देखते हैं, तब क्या होता है ना बेटा, व्हाट इज सीन दैट दीज कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ये कंटिन्यूअसली जिगजैग रैंडम मोशन में घूम रहे होते हैं. स्ट्रेट लाइन होता है बट कंटिन्यूअस जिगजैग, कभी शांति से बैठते नहीं है, बहुत घूमते थे इधर उधर. ठीक है? तो अगर मैं एक पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करूँ ना, तो यहाँ से यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया सर, रिपीट करेंगे? क्या बोलो बेटा? सही डायग्राम. ठीक है? इस तरीके से ना वो एक पार्टिकल, एक कोलॉइडल पार्टिकल कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, जिगजैग 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 घूमता है. ठीक है? दिस काइनेटिक, अभी घूम रहा है मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है ना? तो उसके अंदर एनर्जी है, ये घूम रहा है, बहुत सारे रीजन है उसके, वो देखेंगे हम लोग रीजन. ये जो मोशन दिखाता है मेरा सब कोलॉइडल पार्टिकल्स, दे आर शोइंग दिस मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन बोलो या ब्राउनियन मूवमेंट बोलो, वन एंड द सेम. सर वो ब्राउन नहीं होता ना? क्या बताया बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? और ब्राउन नहीं होता. ब्राउन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने वो डिस्कवर किया था, इसलिए उस मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन बोल रहे हैं. ब्राउन ने क्या ऑब्जर्व किया था? उसने पोलन ग्रेन्स लिया था. पोलन ग्रेन सबको पता है बेटा? Yes. 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 वो पोलन ग्रेन्स को उसने पानी में डाला और उसको माइक्रोस्कोप में उनका मूवमेंट देखा. पोलन सर कौन सा लिक्विड? है? कौन सा लिक्विड? पानी, हाँ, वाटर. पानी. पोलन ग्रेन्स, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स लिया, उसने पानी में डाला और माइक्रोस्कोप में मूवमेंट देखा. उसने क्या देखा? वो पोलन ग्रेन शांति से एक जगह बैठते नहीं, कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में घूमते रहते. उसका मोशन को उसने ब्राउनियन मोशन बोला था. तो जब हम लोग ने ये कोलॉइड का पार्टिकल्स का मोशन देखा,
वो मोशन और वो कूलम ग्रीन का मोशन एग्जैक्टली सेम था, तो ये मोशन को भी अपन ने ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट बोल दिया। अब ऐसा काय को होता है, मेरा डिस्पर्जन मीडियम है, मेरा डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर भी पार्टिकल्स है जो मूव हो रहा है, राइट, और डिस्पर्स के अंदर भी पार्टिकल्स है जो मूव हो रहा है। अब जो दो चीज मूव हो रही है आपस में कभी ना कभी टकराएंगी, अगर एक बीच में मूव हो रही है तो ये they are not moving randomly here and there, na, there is a limited thing, no, yes container, so when they are moving they are colliding with each other, when they are colliding, whenever collision is happening उनको और फोर्स लगेगा और धक्का लगेगा तो अगेन मोशन में जाएंगे, वो दीवार टकराएंगे फिर से मोशन में आएंगे, वो आपस में टकराएंगे फिर से मोशन में आएंगे, राइट, वो एक दूसरे के पार्टिकल्स के साथ टकराएंगे तो मोशन में रहेंगे। इसीलिए these particles, these colloidal particles are in continuous random zigzag motion. Also there is one more reason, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था colloidal particles are charged and all have the same charge. मिरर चार्ज दूसरे के पास आएगा तो हमेशा रिपेल ही होगा ना बेटा। हाँ yes, सर हाँ बोलो। अगर जो कंटेनर में रखा है वो कंटेनर का सरफेस अगर नेगेटिवली चार्ज रहा तो सरफेस नेगेटिवली चार्ज पहली बात तो नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज मेड आउट ऑफ अ मटेरियल व्हिच इज फिक्स्ड, ठीक है, उसके ऊपर आइडियल कंडीशन। सर बोलो बोलो। अगर वो जो सरफेस है उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गया तो हाँ, तो इसीलिए हम ऐसा कंटेनर चूज करते हैं जिसका उसके साथ कोई केमिकल रिएक्टिविटी नहीं होता, सिंपल, ठीक है बेटा। यस सोडियम को कभी पानी के अंदर नहीं रखते, उसको हमेशा केरोसिन के अंदर रखते हैं, है ना। यस सर yes, क्या करता है वो, तो अकॉर्डिंगली हमको केमिकल प्रॉपर्टीज है और हमको पता चलता है, एंड दैट इज व्हाई वी टेक अप्रोप्रिएट मेजर। तो ये काइनेटिक प्रॉपर्टी समझा तुम लोग को? यस काइनेटिक प्रॉपर्टी लिखें। yes, Colloidal particles are observed. Colloidal particles are observed to be in. Colloidal particles are observed to be in continuous, random, zigzag motion in all the directions. In all the directions. This motion of dispersed phase particles, this motion of dispersed phase particles is called Brownian motion. Is called Brownian motion. This is due to, सब लोग लिख रहे हो ना बेटा? यस Yes. This is due to constant collision of. This is due to constant collision of particles. This is due to constant collision of particles in the different phases. In the different phases. और इन द के बाद क्या बोला? And इन द के बाद क्या बोला? डिफरेंट फेज सर कांस्टेंट कोलिशन के बाद क्या बोला? क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हारा आवाज बहुत कम है, क्या बोल रहे हो? कांस्टेंट कोलिशन के बाद क्या बोला सर? हाँ, of कौन particles in different phases. this is due to the constant collision of particles between In different phases. constant collision of particles between the different phases. कौन से फेज की बात हो रही है यहाँ पे? Dispersion phase and dispersed medium. Dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium. Medium. हाँ,
उस ब्रैकेट में लिख लेना डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। सर कंटेनर को भी होगा ना, वॉल्स ऑफ द कंटेनर? हाँ वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी होगा, बट दैट इज वेरी रेयर बिकॉज वो आपस में ही अंदर इतना टकरा लेते हैं और पार्टिकल्स उसको ज्यादा दूर तक जाने देते नहीं है डिस्पर्शन मीडियम में। डन सर। डन। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। चार्ज ऑन colloidal particles. The next property of colloidal particles is charge on colloidal particles. So ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, whenever there is going to be the dispersion medium is going to be a liquid, there is going to be presence of impurities. In these impurities there are going to be electrolytes. Out of these electrolytes जो भी common ion होगा वो उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, और अगर कोई पॉजिटिव एब्जॉर्ब हुआ तो सब पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब होगा, अगर कोई नेगेटिव एब्जॉर्ब हुआ तो सब पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव आयन एब्जॉर्ब होगा। उसके बेसिस पे अपने पास दो टाइप ऑफ कोलॉइड्स होता है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट या कोलॉइड, नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट और कोलॉइड, सॉल्ट सॉल्यूशन कोलॉइड। ओके राइट? Yes. यस। ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। दिस इज आल्सो वन हाँ, ऑफ कोलॉइड, चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। I will have to make 2-3 urgent calls now, ठीक है? So I think whatever we did today was good enough. आपको समझा सब Yes. लोग को? Yes, लगता sir. है? Tyndall effect, Brownian motion, हाँ। And kinetic property. Kinetic property. Colloids. Colors Also of colloid. Colors of charge of colloidal particles. सबको समझा बेटा? Factorization. Yes. Yes. Charge यही है ना? चार्ज तो एक था बेटा जो बताया था मैंने, Yes, yes, sir. एडिशन में जो बताया था वैसे, हाँ। ठीक है? Yes. 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 So let us meet in the next lecture then. Tomorrow. Yes. Tomorrow. And I don't know कब है।